ನಮಸ್ಕಾರ ರೀಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಭಾರತದ ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ 40 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು EVM ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಇದೇ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಆದರೆ ಇದೇ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಮೆಹಮೂದ್ ಪ್ರಾಚಾ ಅವರದೇ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಾಹೇಬರು ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ EVM ಬ್ಯಾನ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಾಹೇಬರು. ಮೆಹಮೂದ್ ಪ್ರಾಚಾ, ಭಾನು ಪ್ರತಾಪ್, ಅನೇಕ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಸೇಪದ ವಾಮನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸಾಹೇಬರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ EVM ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಗ್ತೈತಿ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅನೇಕರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅರ್ಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶದ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನಂದಾರ. ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ EVM ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ಬರುವ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ EVM ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. EVM ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. EVM ಅದು ಒಂದು ಮಷೀನು. ಆ ಮಷೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಹಮೂದ್ ಪ್ರಾಚಾ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರವಾದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾದಂಥ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಾಹೇಬರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ EVM ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡವಡವ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೇರ ಆಪಾದನೆ ಐತ್ರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು EVM ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ EVM ಏನಾದರೂ ಮಷಿನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 9 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಆರೋಪ ಐತಲ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಈಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಾಹೇಬರ ಮುಖ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರ ಇನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರವಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಐತಿ. ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಐತಿ. ಆ ಹಿಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರಾಂಶ ಯಾವ ರೀತಿ EVM ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಯಾವ ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕಾರ ಆದವು, ಯಾವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು, ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯದ ಸಮೇತ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ 15ರಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ಯಾವ. EVM ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡುವ ಆದೇಶ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತಾವನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಬಟನ್ ಹೊಡೀರಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಹಾಕ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने EVM के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया और तो और जुर्माना भी लगाया. आपको जानकर हैरानी होगी कि 1-2 बार नहीं बल्कि 40 बार सुप्रीम कोर्ट ने EVM के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज किया और कहा कि इन याचिकाओं में कुछ सुनने लायक नहीं है. लेकिन अब वही सुप्रीम कोर्ट EVM के खिलाफ दायर की गई याचिका पर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और चुनाव आयोग के हाथ पांव फूल
ही फूल गए हैं। तो अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद ईवीएम भी बंद होने वाली है? सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले याचिका दिखाते हैं जिसने बवाल मचा दिया है। आप खबर देखिए किसान तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाएं देश में चुनाव, वोटिंग में बचे कुछ दिन और सुप्रीम कोर्ट से की गई है मांग। तो क्या ऐसे हालातों में चुनावों को टाला जाएगा? आप जानते हैं कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने वाला है। उसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और जैसे ही याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। पहले तो 40 बार इस याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन शायद इस बार ऐसे तर्क दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहकर भी ईवीएम के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज नहीं कर पाया है। आपको बता दें ये याचिका किसी और ने नहीं, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने लगाई है। उन्होंने तर्क दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना एक अहम नियम है और तो और चुनाव आयोग ने खुद माना है कि ईवीएम हैकिंग की जा सकती है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा ने क्या कहा है, पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है हम आपको बताते हैं। हमने ये सुप्रीम कोर्ट की भी पिटीशन जो लगाई है वो लग गई है और वो आने वाली है। उस पर नोटिस हो गया, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, उसीलिए आप सब नोटिस नहीं हुआ है, अभी वो फाइल हो गई है और वो जिन पिटीशन पे नोटिस हुआ है उनके साथ ही हियरिंग पे अब आएगी। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 हफ्ते में हम सुनेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ आपको, एक और सबूत हमारे हाथ में आ गए चुनाव लड़ने की वजह से। ये हैंडबुक है जो हर एक कैंडिडेट को मिलती है। ये हैंडबुक भी मैं आपको चाहूँगा आप अपने दर्शकों को दिखाएं। हम आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भी सबको सप्लाई करेंगे। इसमें ये साफ साफ लिखा है जो चुनाव आयोग ने, मैं ये आप टाइम लगेगा, मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव ईवीएम से सुरक्षित रूप से नहीं हो सकता। कोई भी आदमी जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में एकदम बेसिक नॉलेज भी है वो इस में से पढ़ के ये बता सकता है कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्मित ये जो ईवीएम्स हैं ये सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षित अब भी ये बता रहे हैं कि हम आदमी लगाएंगे अपने वहाँ पे ताकि उसको धांधली ना कर सके कोई। हैकिंग नहीं हो सकती है, चुनाव आयोग पूरी मजबूती से नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने ऐसे बढ़िया काम से कर रखा है कि चुनाव इसकी हैकिंग हो नहीं सकती। ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसकी हैकिंग नहीं हो सकती, ऐसी कोई मशीन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा का कहना है कि हमने चुनाव आयोग के साथ मीटिंग की जिसमें चुनाव आयोग ये मजबूती के साथ नहीं कह पाया कि ईवीएम में हैकिंग संभव नहीं है। उनका कहना है कि हैकिंग हो सकती है, लेकिन उस हैकिंग को रोकने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत हम लोग अधिकारी नियुक्त करते हैं और हैकिंग को रोका जा सकता है। तो इस पर महमूद प्राचा का कहना है कि ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है दुनिया में जिसे हैक ना किया जा सकता हो। इसी को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और 2 हफ्ते में सुनवाई होने वाली है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने ईवीएम के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को 40 बार खारिज कर दिया और खारिज करते हुए क्या कहा है सुनेगा। आप खबर देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट 40वीं बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईवीएम के खिलाफ याचिका, एक पर लगाया जुर्माना। तो 40 बार ईवीएम के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। और मैं ये कोई आपको पुरानी खबर नहीं दिखा रही हूं, ये खबर इसी साल की है, मार्च के महीने की है। देखिए जागरण में लिखी भी हुई है डेट की 15 मार्च 2024। तो 15 मार्च को तो याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अप्रैल के महीने में याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिलहाल क्यों पहले खारिज की गई थी, इसके लिए खबर में अंदर क्या लिखा है सुनेगा। देखिए इसमें खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम से जुड़ी जिन 2 याचिकाओं को खारिज किया है उनमें से एक में 19 लाख से अधिक ईवीएम के गायब होने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से जब इसके सबूत मांगे तो वो पेश नहीं कर पाए। नाराज कोर्ट ने 2016 से 19 के बीच 19 लाख ईवीएम के गायब होने की जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया और जुर्माना भी लगाया है। तो 19 लाख ईवीएम गायब हो गई है, उसको लेकर जो सवाल खड़े किए जाते हैं उसको लेकर याचिका लगाई गई थी। जब सबूत सामने नहीं आए तो याचिका को खारिज किया गया और जुर्माना
लगाया गया। लेकिन जो दूसरी याचिका है वो काफी अहम है, जिसको खारिज कर दिया था और अब एक्सेप्ट कर लिया है। पहले कैसे खारिज किया था सुनेगा। देखिए इसमें लिखा है कि दूसरी याचिका में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव को फिर बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने बगैर सुने इससे खारिज कर दिया। तो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग वाली याचिका को पहले यानी कि मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अप्रैल में ऐसा क्या हो गया कि याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है और 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है। कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ठीक 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस में जवाब तलब किया गया है कि आखिर आपको दिक्कत क्या है कि आप ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान नहीं कर रहे हैं। इस पर भी 1 हफ्ते बाद सुनवाई होने वाली है और उसके ठीक पहले ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ की याचिका को भी स्वीकार कर लिया गया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सीजेआई चंद्रचूड़ का यह फैसला 2024 लोकसभा चुनाव को पलट कर रख देगा, क्योंकि फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। धड़ाधड़ फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं और सीजेआई चंद्रचूड़ तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं तारीख पर तारीख देने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं तुरंत फैसला सुनाने में विश्वास रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट जिसने ऐतिहासिक फैसले सुनाए, इस बार के कार्यकाल की बात की जाए तो रिकॉर्ड फैसले सुनाए, तो क्या वही सुप्रीम कोर्ट अब ईवीएम को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाने वाला है? क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के अगर मतदान की बात की जाए तो 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है और उसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने याचिका दाखिल की है और याचिका में मांग की है कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना एक अहम नियम है। और जहां तक रही मशीन की बात, वो तो मशीन है, उसे हैक किया जा सकता है और अगर हैकिंग होती है तो इस तरीके से लोकतंत्र को भी हैक किया जा सकता है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में बड़ा मसला पहुंच गया है, याचिका लगा दी गई है, सुनवाई के लिए वो तैयार हैं। अब सुनवाई के बाद क्या फैसला निकलकर सामने आएगा ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि क्या सीजेआई चंद्रचूड़ लोकसभा चुनाव 2024 को पलट कर रख देंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी याचिका पर और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जिसमें वो सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।